رات کے گہرے سائے ہر طرف اپنی چادر پھیلائے ہوئے تھے. میں آہستہ آہستہ سیڑھیاں اتر رہا تھا. خاموشی کا عالم تھا. خاموشی کے اس لمحے تابندہ کی چیخیں مجھے واضح سنائی دے رہی تھیں. ابھی ابھی تو میں بچوں کو کمرے میں سلا کر نیچے استقبالیہ کی طرف لوٹ رہا تھا. تابندہ واش روم میں فریش ہونے چلی گئی تھی. اتنے میں نیچے جا کر کمرے کا کرایہ طے کرنا چاہتا تھا. ابھی چند سیڑھیاں اترا ہی تھا کہ تابندہ کی وحشت ناک چیخوں نے مجھے واپس پلٹنے پر مجبور کر دیا. میں پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر ہوں اور اپنے کلینک پہ صبح شام مریضوں کا علاج کرتا رہتا ہوں. ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ میں ایک روحانی عامل بھی ہوں اور اکثر اپنے مریضوں کا علاج روحانی عملیات سے بھی کرتا ہوں. میرے 2 بچے ہیں. اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے نواز رکھا ہے اور رحمت کا ہی امیدوار ہوں. تابندہ میری شریک سفر ہے اور آج سے 15 سال پہلے میری زندگی میں آئی. یہ ان دنوں کی بات ہے جب گرمیاں زوروں پر تھیں. سورج آگ برسا رہا تھا. ہم کئی دنوں سے ٹھنڈے علاقے کی سیر کا پروگرام بنا رہے تھے. کب سے کہہ رہی ہوں کہ سیر کو چلیں، مگر آپ ہیں کہ ٹال مٹول سے کام لے رہی ہیں. ابھی بچوں کی چھٹیاں بھی ہو گئی ہیں اور موسم بھی قدرے اچھا ہے. جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوا تو بیگم صاحبہ کا پارا گرم تھا. اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا انہوں نے تو مجھے الٹیمیٹم دے دیا. وہ مسلسل 6 ماہ سے کہہ رہی تھی اور میں مصروفیات کے جال میں ایسا جکڑا ہوا تھا کہ کیا بتاؤں. کلینک پہ مریضوں کا رش ہی اتنا ہوتا تھا. مریضوں کو چیک کرتے کرتے شام ہو جاتی اور کلینک 2-4 دن کے لیے بند بھی نہیں کر سکتا تھا. ادھر بیگم صاحبہ بلا ناغہ کہیں جانے کو کہہ رہی تھیں. آج تو ان کا پارا آسمان کو چھو رہا تھا تو بلا آخر غنیمت یہی جانی کہ ہفتے کی شام کو چلیے. میرے دونوں بیٹے سلطان اور علی تیار تھے اور ان کی ماما بھی تقریباً ریڈی تھی. میں ابھی تک کلینک پر تھا. بار بار میری بیگم صاحبہ کی کالز آ رہی تھی. بڑی مشکل سے مریضوں سے فارغ ہوا اور بھاگم بھاگ گھر کی طرف گاڑی دوڑاتی. بیگم صاحبہ کی آخری کال اس وقت آئی جب میں گھر سے 3 کلومیٹر کی دوری پر تھا. گھر پہنچا تو تابندہ کے تیور تو بدلے ہوئے تھے. مجھے دیکھتے ہی فوراً بولی، کبھی تو وقت پہ گھر آ جایا کرو. دیکھو تو کتنا ٹائم ہو گیا ہے. بچے کب کے تیار ہیں. اب تو سارے پلان کا ستیہ ناس ہو گیا ہے نا. اب کہاں جا پائیں گے. ابھی کچھ نہیں ہوا، بہت وقت پڑا ہے. میں شارٹ کٹ راستہ جانتا ہوں. ہم مریض جلدی پہنچ جائیں گے. بس تم سامان اٹھاؤ، جلدی سے گاڑی میں سامان رکھو اور ہم نکلتے ہیں. میں کہتے ہوئے کپڑے بدلنے چلا گیا. بچے اور تابندہ گاڑی میں سامان رکھنے لگے. جس راستے کا میں نے انتخاب کیا تھا مشکل ضرور تھا مگر شارٹ کٹ تھا. ہم بہت جلدی مری پہنچ جاتے. کئی بار دوستوں کے ساتھ اسی راستے سے آیا گیا تھا. جب ہم گھر سے نکلنے لگے تو شام کے 7 بج رہے تھے. اندھیرا پھیلنے کو تھا. برقی بتیاں روشن ہو چکی تھیں. جس راستے سے میں جا رہا تھا ایک طرف گہری کھائیاں تھی تو دوسری طرف آسمان کو چھوتے پہاڑ. گہرائی کی طرف دیکھتے تو خوف سا آتا اور پہاڑوں کی طرف نظر جاتی تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے لگتے. شام کو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں ہمارا استقبال کر رہی تھیں. قداور پہاڑوں پہ چھوٹے چھوٹے سرسبز پودے بہت پیارے لگ رہے تھے. خوبصورت مناظر دیکھنے کو مل رہے تھے. میں بچوں کو انجوائے کرا رہا تھا. جب خطرناک موڑ آتے تو میرے بچے سہم سے جاتے. ہماری کل مسافت 6 گھنٹے کی تھی. میرا پلان یہ تھا کہ اگر زیادہ لیٹ ہو گئے تو راستے میں کسی ہوٹل میں رک جائیں گے. رات کا بقیہ پہر وہاں گزار کر تازہ دم ہو کر صبح سویرے مری پہنچ جائیں گے. اسی راستے پہ میں نے چند ایک ہوٹل دیکھ رکھے تھے مگر وہاں رکنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا. ہوٹل تک پہنچتے پہنچتے 4 گھنٹے بیت گئے تھے. میں ابھی ڈرائیو کرتے ہوئے تھک گیا تھا. مجھے نیند کی خماری ہو رہی تھی اور ایسی حالت میں ڈرائیو کرنا خطرناک ہو سکتا تھا. میرے بچے بھی جوائیاں لینے لگے. تابندہ جو چلتے وقت جوش و خروش میں تھی اب اس کی حالت دیدنی تھی. آنکھیں پھٹی پھٹی تھیں اور جیسے سیٹ پہ کسی مجسمے کو سلیقے سے رکھ دیا ہو. نہ کوئی حرکت. لب سلے ہوئے تھے. سو میں نے ہوٹل کی تلاش میں گاڑی کی سپیڈ آہستہ کر دی تاکہ پہلے آنے والے ہوٹل میں ہی رک سکے. تھوڑی سی مسافت کے بعد مجھے ایک ہوٹل نظر آیا تو میں نے گاڑی ہوٹل کی طرف موڑ دی. رات کے 11 بج رہے تھے. بچے سونے کے لیے بےتاب تھے. تابندہ بھی ڈھیلی پڑ چکی تھی. ہم جلدی ہی کمرے تک پہنچنا چاہتے تھے. میں نے گاڑی پارک کی اور ہوٹل کے اندر داخل ہو کر استقبالیہ پر پہنچا. وہاں 70 سالہ بزرگ کرسی پہ بیٹھا اونگ رہا تھا. بزرگ کے علاوہ مجھے وہاں اور کوئی نظر نہ آیا. کہاں آ گئے ہیں ہم لوگ، میں نے دل ہی میں کہا. ہر طرف خاموشی کے پہرے ہیں. ابھی اتنی رات بھی نہیں گزری. اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ہوٹل آبادی میں نہیں ہے. میں نے اندازہ لگایا.
इर्द गिर्द कोई शहर या आबादी नजर नहीं आ रही थी। ऐसे होटल मुसाफिरों के लिए बनाए जाते हैं जो रात गुजारने के लिए यहाँ रुकते हैं। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि बुजुर्ग जमाई लेते हुए उठ गया। क्या कमरा चाहिए? जी बाबा जी, लेकिन कुछ नहीं बेटे, कमरे साफ सुथरे हैं। उसने कहते ही बेल दी तो दूसरे लम्हे दुबला पतला सा नौजवान वारिद हुआ। सुलेमान साहब को कमरे दिखाओ, ये लो चाबियां। बच्चे थके थके से लगते हैं, जल्दी करो। बुजुर्ग ने नौजवान को चाबियां पकड़ाते हुए कहा। बहुत शुक्रिया बाबा जी, लेकिन किराया कितना होगा? वो भी तय कर लेते हैं, पहले बच्चों को कमरे तक तो छोड़ आओ। कमरे देख तो लो, पसंद आ जाए तो किराया भी तय हो जाएगा। अभी बच्चों को सुलाओ, जाओ। जी अच्छा। बाबा जी बहुत रहमदिल और बाइखलाक लगते थे। नौजवान ने हमारा सामान उठाया और आगे आगे चल पड़ा। कमरे दूसरी मंजिल पे थे। हम सीढ़ियां चढ़ने लगे। ये क्या? हम सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते थक से गए थे, मगर सीढ़ियां खत्म ही नहीं हो रही थी। भाई, दूसरी मंजिल क्या आसमान पर है जो सीढ़ियां खत्म नहीं हो रही? बस 2-4 और, सुलेमान ने जवाब दिया। खैर, चंद सीढ़ियां और चढ़े तो राहदारी आ गई। कमरों की लंबी कतार लगी थी। मैंने सीढ़ियां खत्म होते ही लंबे लंबे सांस लिए और नौजवान ने एक कमरे का दरवाजा खोल दिया। ये रहा आपका कमरा। बुजुर्ग ठीक ही कह रहे थे। कमरा साफ सुथरा था। बच्चे सोफे पे चढ़ते ही लंबी तान कर सो गए और बेगम वॉशरूम चली गई। मैंने ताबिंदा से कहा कि आप इजी हो लो, मैं किराया तय करके आता हूँ। नौजवान को मैंने रुकने का कहा था और वो दरवाजे के बाहर मेरे इंतजार में खड़ा था। मैं सामान रखकर बेगम को वापस आने का कहकर किराया तय करने बुजुर्ग की तरफ चल पड़ा। चलें भाई, मैंने सुलेमान को कहा। शायद अभी मैं चंद सीढ़ियां ही उतरा हूँगा कि मुझे ताबिंदा की बेहानक चीखें सुनाई दी। नौजवान मेरे पीछे था। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो हैरान रह गया। नौजवान गायब था। ये कहाँ गया? सुलेमान, सुलेमान, मैं उसे पुकारने लगा। सीढ़ियों पे अचानक अंधेरा छा गया। शायद बिजली चली गई है। मैं वापस कमरे की तरफ सीढ़ियां चढ़ने लगा। अंधेरे में गिरते पड़ते बमुश्किल कमरे तक पहुंचा तो अंदर का मंजर बड़ा भयानक था। वॉशरूम का दरवाजा खुला था। मेरी बीवी की शक्ल खौफनाक हो चुकी थी। जिंदगी में ऐसी बदसूरत औरत मैंने कभी नहीं देखी थी। ताबिंदा, मैंने बेगम को मुखातिब किया तो ताबिंदा ने कनखियों से मेरी तरफ देखा तो मेरे तो होश उड़ गए। मेरे हवास काबू नहीं रहे थे। ये ताबिंदा तो नहीं है। मेरी ताबिंदा तो हुस्न की शहजादी है। उसके खूबसूरत नैन नक्श पे मैं मर मिटा था। मेरी ताबिंदा खूबसूरत होने के साथ नेक सीरत भी है, लेकिन ये ताबिंदा नहीं तो और कौन है? लिबास वही जो ताबिंदा ने पहन रखा था, जिसामत भी तो वही है, लेकिन ये सूरत। सामने बैठी वो बदसूरत औरत नुमा चुड़ैल मेरी तरफ देख रही थी। उसकी आंखें सुर्ख लाल थीं, जैसे अभी खून के फवारे फूट पड़ेंगे। बाल बिखरे हुए और हाथ नोकदार खंजर की तरह लंबे लंबे काले बालों से अटे हुए। मेरे रगों पे मैं कपकपी तारी हो गई। पहले लम्हे तो मैं डर गया, लेकिन दूसरे लम्हे एक नादीदा हस्ती ने मुझे हौसला दिया। घबराओ नहीं, तुम तो बहुत बहादुर हो, मुकाबला करो। तुम्हारे पास तो इन बलाओं को काबू करने के बहुत वजीफे हैं, क्या तुम्हें याद नहीं? तब मुझे याद आया कि मैं तो अक्सर अपनी क्लिनिक पर लोगों के रूहानी और जिस्मानी इलाज करता हूँ। मैं तो तमाम रूहानी अमलियात जानता हूँ। दवा के साथ साथ दुआ देता हूँ तो शिफायाबी होती है और लोग मुझे दुआएं देते रुखसत होते हैं। गैर मर्रई मखलूक से तो मेरा टकराव होता ही रहता है। ताबिंदा के रूप में वो चुड़ैल मेरी तरफ बढ़ी। इससे पहले कि वो मुझे नुकसान पहुंचाती, मैंने पहला वजीफा पढ़कर अपने इर्द गिर्द हिसार कायम कर दिया। वो चीखती चिल्लाती रही। उसने मुझे दबोचने के लिए हाथ मेरी गर्दन की तरफ बढ़ाए, लेकिन उसके हाथ हवा में मौल्लक रह गए। वो बड़ी बेताब लग रही थी। उसकी बेकरारी दीदनी थी। मैं उसको वासिले जहन्नुम करना चाहता था कि मुझे बच्चों और मेरी बीवी का ख्याल आया। बच्चे कमरे में मौजूद नहीं थे और कमरे की खिड़की खुली थी। मेरे बच्चे कहाँ गए? ताबिंदा, ताबिंदा, मैंने ताबिंदा को आवाज दी। मेरे अल्फाज मेरा साथ नहीं दे रहे थे। मैं अपने हवास खो देता, मगर मैंने अपने अल्लाह को पुकारा, या अल्लाह मदद। कहीं इस खबीस ने मेरे बच्चों और ताबिंदा को। आगे तो मैं कुछ सोच ना पाया। बच्चों का ख्याल आते ही खुली खिड़की की तरफ में लपका। कहीं मेरे बच्चों को यहाँ से बाहर ना फेंक दिया हो। खिड़की से रोशनी की लंबी लकीर दूर तक जा रही थी। मैं खिड़की के करीब पहुंचा ही था, सामने कब्रिस्तान नजर आया। बहुत बड़ा कब्रिस्तान। कहीं कहीं घने दरख्त भी थे।
रोशनी की लकीर ही में एक दरख्त की शाखों पे मुझे अपने दोनों बच्चे और मेरी बीवी की शक्ल नजर आई, जो शाखों से उल्टे लटके हुए थे। मैं बेचैन हो गया। मैं जज्बे मोहब्बत में छलांग लगाकर अपने खानदान के पास जाना चाहता था। शायद मैं कूद ही गया होता, लेकिन अभी मैंने इरादा ही किया था कि उसी नादीदा हस्ती की आवाज ने मुझे झंझोड़ा। क्या पागलपन है, बच्चों को बचाने की खातिर अपनी जान गंवाने पे तुले हो? ये उनकी चाल है, जिंदगी से हाथ धो बैठोगे। फिर क्या करूं? मेरी आंखों के सामने मेरी औलाद और मेरी प्यारी बीवी ताबिंदा लटकी है, और आप तो जानते हैं इंसान की कुल कायनात औलाद ही होती है। तुम्हारे बीवी बच्चे कमरे में ही हैं, लेकिन तुम्हें नजर नहीं आ रहे। इस चुड़ैल ने उनका अक्स वहां दिखाया है, वो तुम्हें मारने पे तुली है। फिर तुमने गौर नहीं किया, वहां कब्रों पे भी एक लड़का बैठा है, देखो तो सही। मेरी नजरें कब्रिस्तान की तरफ उठ गईं। वाकई जहां मेरे बेटे उल्टे लटके थे, उनके नीचे एक कमसिन बच्चा कब्र पे बैठा मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखें वहशियाना थीं, होंठ नीचे को ढलके हुए और बाजू बहुत लंबे थे। मुझे उस बच्चे से खौफ आने लगा। वो जहां हाथ करता वहां से धुआं उठता और वहां वहशी चेहरे मुस्कुराने लगते। उनकी लंबी लंबी जुबानें थीं, हर एक के मुंह में दो दो जुबानें। या अल्लाह मदद, अब मैं क्या करूं? मैंने बच्चे को देखते हुए अपने ख्यालों में नादीदा हस्ती से बात की। तुम इस चुड़ैल को अपने काबू में करो और इसको यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए दफा करो। इस चुड़ैल के बच्चे इस इमारत के नीचे दबकर मर गए हैं और ये भी अपनी औलाद के लिए तड़प रही है। अगर ये राह रास्त पर आ जाए तो इसे माफ कर देना। तब मैंने जिन्नात को काबू करने का वजीफा पढ़ा और वो खबीस चुड़ैल मेरी कैद में आ गई। वजीफा पढ़ते हुए उसने बड़ी तगोदो की थी, हमला करने की और मुझे नुकसान पहुंचाने की। लेकिन एक तो मैं हसार में था और दूसरा मैंने ताकतवर वजीफा किया था। मुझे छोड़ दो, जो कहोगे वही करूंगी। अच्छा, इतनी जल्दी मान गई? अभी तो बड़े तेवर दिखा रही थी। मेरे बीवी बच्चे कहाँ हैं? उनको मेरे सामने लाओ। और ये क्या ड्रामा है कि लिबास मेरी बीवी का और जिसामत भी उसी की, लेकिन मेरी बीवी कहाँ है? तुम किसी और रूप में आओ। पलक झपकते ही धुआं सा हुआ, बदबू सी फैल गई और वो जो सामने थी धुएं में तहलील हो गई और बिल्ली के रूप में खुली खिड़की में बैठी म्याऊं म्याऊं करने लगी। वॉशरूम के दरवाजे की चरचराहट सुनाई दी, दरवाजे हिलने लगे और मेरी बीवी नमूदार हुई। उसको असली रूप में देखकर तो मेरी जान में जान आई। उसके हवास उड़े हुए थे। चंद लम्हों बाद उसे होश आया तो भागकर मेरे सीने से लग गई। उसका जिस्म तप रहा था और पसीने से शराबूर थी। हालांकि इस पहाड़ी इलाके में रात का वक्त कदरे ठंडा था और वो नहाने भी गई थी। मैंने उसे तसल्ली दी, तब उसे अपने बच्चों का ख्याल आया। बच्चे कहाँ हैं? वो तो सो रहे थे। उसे इस कहानी का कोई पता नहीं था। अब मैंने खिड़की में बैठी बिल्ली की तरफ इशारा किया जो म्याऊं म्याऊं कर रही थी। ताबिंदा बिल्ली को देखने लगी और मैंने पूछा, मेरे बच्चे कहाँ हैं? तुम्हारे बच्चे कमरे में ही हैं, लेकिन पहले मुझे आजाद करो। बिल्ली को इंसानी आवाज में बोलते देखकर तो ताबिंदा के हवास उड़ गए। आजाद तो मैं कर दूंगा, पहले ये बताओ कि हमें तंग करने का तुम्हारा मकसद क्या है? मेरी बीवी नीम बेहोशी में मुझे देखे जा रही थी। मैंने उसे इशारे में खामोश रहने का कह दिया था। मैं 11 साल से इस होटल में मुकीम हूँ। जो भी यहाँ आता है जिंदा सलामत वापस नहीं जाता। इसी तरह ये होटल वीरान हो गया था, मगर आज कई सालों बाद तुम यहाँ आए हो। इस्तकबालिया में जो तुम्हें बुजुर्ग मिला है वो भी इंसानी रूप में जिन ही है। वो मेरा बाप है और सुलेमान जो सामान रखने आया था मेरा शोहर है। हम तीनों का यही काम है, इंसानों का खून पीना और उनको अजियत दे देकर मार देना। पहले हम अजियत देते हैं, डराते हैं, फिर खून पीते हैं और मार देते हैं। मगर क्यों? जब मैंने इसरार किया तो उसने मुझे बताया। बहुत अरसे पहले की बात है, इस होटल की जगह मेरा खानदान आबाद था। यहाँ बहुत बड़ी आबादी मुकीम थी, लेकिन कयामत खेज ज़लज़ला आया और सब मलिया मेट हो गया। सब आबादी ख़त्म हो गई और सामने जो कब्रिस्तान है इन्हीं लोगों से आबाद है। इसी जगह बेरी का दरख्त भी था जिस पे हम आबाद थे। ये बेरी का दरख्त बहुत बड़ा और पुराना था जिस पे हमारे आबाओ अजदाद एक अरसे से आबाद थे। ये जगह खंडरात की शक्ल इख्तियार कर चुकी थी, लेकिन बेरी का दरख्त सलामत रहा था। फिर काफी अरसे बाद इस होटल के मालिक ने इस जगह होटल बनाया। हमें कोई एतराज नहीं था, लेकिन जब उसका काम चल निकला तो उसने होटल को वुसअत दी और कमरों की तादाद बढ़ा दी। दूसरी इमारत जो बननी थी उसमें बेरी का दरख्त आता था। जालिमों ने बेरी का दरख्त कटवा दिया।
वो दरख्त कटने की वजह से हमारे बच्चे और खानदान के काफी अफराद मारे गए। हमने बड़ी मुजाहमत की, कई मजदूरों के हाथ पांव टूटे, कई मर भी गए, लेकिन वो बेरी का दरख्त उखाड़ने में कामयाब हो गए और हम नाकाम हो गए। हमारा खानदान बिखर गया, जिसका हमें बहुत दुख था। फिर हमने इस होटल मालिक समेत इंसानों से बदला लेना शुरू कर दिया। अब की बार हमने एक एक करके इंसान को निशाना बनाया। पहले उस आमिल को मौत के घाट उतारा जिसकी मदद से उन्होंने ये दरख्त उखड़वाया था। वो आमिल पहले सीधे रास्ते पर था, इसलिए हम पे गालिब आ गया था, लेकिन जो ही उसके पास दौलत आने लगी वो खबीस बन गया। बहुत सी बुराइयां उसमें पैदा हो गई थीं। यही वक्त था बदला लेने का, और हमने उसके लोथड़े बिखेर दिए। दरख्त कट जाने के बाद जो हमारा बचा कुचा खानदान था वो कब्रिस्तान के दरख्तों पर आबाद हो गया। इस कब्रिस्तान में बेरी के काफी दरख्त हैं। उस दिन से हमने होटल को अपना निशाना बनाया और अपने मरने वालों का बदला चुन चुन कर लिया। हमारी इंतकाम की आग अभी तक ठंडी नहीं हुई। तब से आज तक हम यहाँ रहते हैं और जो भी यहाँ आता है उसे मार देते हैं। हमारे डर की वजह से होटल मालिक यहाँ से भाग गया और ये होटल गैर आबाद हो गया। हम इंसानी रूप में आकर आने वालों को खुशामदीद कहते हैं और अपनी दुश्मनी का बदला लेते हैं। बस यही कहानी है हमारी। तुम वाहिद इंसान हो जिस पे हमारा दाव नहीं चला और तुमने मुझे गुलाम बना लिया। तुम भी कोई नेक आमिल लगते हो, लेकिन कब तक नेकियां करोगे? आखिर तुम भी उस आमिल की तरह ही बन जाओगे और फिर? अब तो मुझे तुम छोड़ दो। नहीं, तुम्हें ये सिलसिला खत्म करना होगा। नहीं, हमने कसम खाई है जब तक जिंदा है इंसानों से बदला लेते रहेंगे। तुम जिंदा रहोगे तो बदला लोगे ना। मैं तुम्हें खत्म कर देता हूँ और फिर तुम्हारे खानदान को भी खत्म कर दूंगा। मैंने रोबदार लहजे में कहा, मानती हो या नहीं? मैं तुम्हें और तुम्हारे खानदान को खत्म कर दूंगा, नहीं तो यहाँ से चुपचाप हमेशा के लिए चले जाओ और वादा करो आइंदा किसी इंसान को तंग नहीं करोगे। ये नहीं हो सकता। अच्छा तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारे साथ साथ मैं सबको खत्म करता हूँ। मुझे तो मेरे राहबर ने मना किया था कि तुम लोग अगर राह रास्त पर आ गए तो तुम्हें माफ कर दूं, मगर तुम नहीं मानोगे, तुम्हें खत्म करना ही होगा। ये कहते ही मैं वजीफा शुरू करने लगा। वो चीखने लगी, नहीं, जिस अल्लाह को मानते हो उसी का वास्ता, मेरे खानदान को कुछ ना कहना। उसने फौरन हार मान ली। तुम भी तो उसी अल्लाह की मखलूक हो, उसी को मानते हो, फिर उसकी दूसरी मखलूक को क्यों अजियत देते हो, क्यों मारते हो? बंद कर दो ये सिलसिला। उसने मेरी बात मान ली। अब मेरे बच्चे मेरे हवाले कर दो, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। उसने अगली टांग को हरकत दी। धुआं सा हर तरफ फैल गया। बेड के नीचे से बिल्ली के 2 बच्चे नमूदार हुए और बेड पे चढ़ गए। दूसरे लम्हे मुझे धुएं में कोई चीज नजर आई। फिर देखते ही देखते 2 इंसानी ह्योले नजर आए। धुआं खत्म हुआ तो मेरे बच्चे बेड पे पड़े सो रहे थे। ताबिंदा मदहोशी के आलम में मुझसे जुदा हुई और बेड पे जाकर बच्चों को दीवानावार चूमने लगी। मैंने बच्चों को देखकर अपने अल्लाह का शुक्र अदा किया। या अल्लाह तेरा शुक्र है। मैं दिल ही दिल में अपने अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था। इतने में खिड़की से आवाज आई, अब तो तुम मुझे आजाद कर दो। मैं तुम्हें हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कसम देता हूँ, तुम फिर किसी इंसान को तंग नहीं करोगे। नहीं, मैं वादा करती हूँ कि किसी इंसान को हम लोग तंग नहीं करेंगे। चुड़ैल ने वादा किया। मैंने वजीफा पढ़ना शुरू किया और वजीफा पढ़ता गया। फूंक बिल्ली पे मारता गया। वजीफा मुकम्मल होते ही एक तूफान सा उठा। जोरदार तूफान आया, तेज आंधी और बारिश, हर तरफ जल थल हो गया। खिड़की से बिल्ली गायब हो चुकी थी, साथ ही तूफान और बारिश भी गायब थी। कुछ घंटों बाद कोई दूर दराज गांव से हल्की सी आजाने फजर सुनाई थी। रात का अंधेरा छट गया था और सहर होने लगी थी। मैं कमरे के दरवाजे के साथ खड़ा था। ताबिंदा और बच्चे बेड पे सो रहे थे। जिन्नात जा चुके थे। मैं खुद को टटोल रहा था। मैंने वुजू किया, नमाज फजर अदा की, बच्चों को जगाया और सफर पे रवाना हो गए। सूरज अपनी किरणों से रूहे जमीन पे रोशनी बखेर रहा था और हम हंसते हंसाते मरी पहुंच गए थे। मेरी बीवी बहुत ही ज्यादा खौफजदा थी, लेकिन मैं उसको एंजॉय कराने की भरपूर कोशिश कर रहा था। मरी पहुंचने के बाद हमने खूब सैर सपाटे किए। शाम तक हम घर वापस भी लौट आए। आज भी जब मैं इस वाक़े को याद करता हूँ तो मेरे रूंगटे खड़े हो जाते हैं और अल्लाह ताला की हम्दो सना करने लगता हूँ। वही तो है जिसने हर बला से महफूज रखा हुआ है और अशरफुल मखलूकात बनाकर सभी मखलूक से इंसानों को अफजल बना दिया है। ये किसी नेमत से कम है कि हम इंसान हर मखलूक को अपने ताबे कर सकते हैं।